Hello students, I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject PDS Python for Data Science, and in PDS till now we have shown the basic about the Python, how you can implement the programs with Python like loops है, statements है, variables है, data structures है, उनका आप with Python कैसे implementation कर सकते हो वो हमने अब तक देखा है. And now we are moving towards our second chapter, which is data science and Python, because our subject is about the PDS Python for data science. So again, data science is a vast field, but we'll see how we can fulfill some basic requirements with Python and data science. So throughout the chapter, हम क्या क्या पढ़ेंगे? Core competencies of the data scientist, creating the data science pipeline. Why Python? Then we'll understand the role of Python in data science, considering the speed of execution, and we are also going to see the ecosystem of Python with data science, like to perform the fundamental scientific computing, we are using NumPy. We are performing some data analysis using Pandas. We are accessing scientific tools using by SciPy. We are implementing machine learning using Scikit-learn. We are going to we are going for the deep learning with Keras and TensorFlow, plotting the data using Metasploit, creating the graphs with Network KX, and parsing the HTML document using the Beautiful Soup. So these are some tools or technology you can say. With then we can explore Python in detail, and in that we are understanding the concept of the data science. So this is the basic guideline of the chapter, and we are starting with the core competencies of the data scientist. So before understanding that, let's understand what is data science, because it is all about the handling the data. So data science का role क्या है? If technical terms में मैं बोलूँ कि what is data science? So data science is a branch of the computer science where we study how to store, use and analyze the data for deriving the information from it. कि आपके पास जो डेटा होगा उसको आप कैसे स्टोर करोगे, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, उसका एनालिसिस कैसे करोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ करोगे. दैट इज ऑल अबाउट द डेटा साइंस. So data science is about gathering the data, analyzing the data, and decision making about the data. Data science is about finding the patterns in the data, analysis and make future predictions. Data science is essentially a method of viewing and analyzing statistics and probability. Means जैसे मैंने previously भी बोला है कि why we are using Python, because जो data science का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग अभी जो डेटा जनरेट हो रहा है वो काफी ह्यूज अमाउंट में हो रहा है. लाइक अगर आप 1 मिनट का भी एनालिसिस करो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल है, और इवन यू कैन से कि जो इंटरनेट का यूज हो रहा है डे बाय डे, एंड स्पेशली इन द लास्ट डेकेड, इन लास्ट 10 डेकेड्स में जो ग्रोथ हुआ है इंटरनेट का, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा यूसेज हो रहा है, और यू कैन से कि डेटा जनरेट भी हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा एनालाइज हो रहा है, वो बेसिकली जो डेटा पे जो वर्क हो रहा है वो काफी ह्यूज अमाउंट पे है. लाइक मैं एक एग्जांपल दूं कि इंस्टाग्राम का ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में मोर देन 2 लाख और 3 लाख का डेटा जनरेट हो रहा है. तो अभी वो क्वाइट ज्यादा हुआ. ये सिर्फ 1 मिनट का डेटा था. वही चीज अगर आप विद टाइम देखो तो बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा. सो उस डेटा को हैंडल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. फॉर दैट वी नीड सम टेक्नोलॉजीज, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग डेटा साइंस, क्योंकि उसमें आपका डेटा स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को स्टैटिस्टिकली पुटअप करना काफी इजी हो जाता है. तो अभी डेटा साइंस पे डेटा साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं, या तो उनकी कोर कंपेटेंसीज कौन सी है कि जिसके बेस पे आप डिफाइन कर सको कि ये डेटा साइंस पे वर्क हो रहा है. सो डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द वास्ट रेंज ऑफ द स्किल्स टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्टोर द डेटा, एनालाइज द डेटा, एंड use that data. So
डेफिनेटली वो डेटा क्वाइट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और वो जो वास्ट रेंज ऑफ डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए वी नीड सम डेटा साइंटिस्ट. So most of the time data scientists work in a team to provide the best result. For an example, someone who is good at gathering the data might team up with an analyst and some gifted in the presenting information. मीन्स अभी बहुत सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ती है. बेसिक चीजें हमने डिस्कस की कि आपको डेटा गैदर करना पड़ता है, आपको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन उस डेटा को यूज में पुट अप करना पड़ता है. तो अभी एक ही पर्सन में ये सारी पर्सनालिटीज हो, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्स जो है एक साथ, मल्टीपल रिक्वायरमेंट, दैट इज माइट बी नॉट पॉसिबल कि वो सब एक साथ हैंडल कर पाए. तो अलग अलग पर्सन होता है, वो अलग अलग फील्ड पे वर्क करते हैं डेटा साइंस में. तो माइट बी पॉसिबल कि कोई एक बंदा डेटा गैदरिंग है उस टास्क में एक्सपर्ट है, कोई बंदा है वो डेटा एनालाइजिंग है उसमें एक्सपर्ट है, एंड कोई पर्सन ऐसा है जो उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है उसमें एक्सपर्ट है. तो वो टीम अप बन के वर्क करते हैं. एंड there are some areas in which the data scientists could find an opportunity because the data generation is high. अभी की data demanding is high, so data handling is necessity. So for data scientists in their areas they could find the opportunities as well, like data capturing है, analyzing है, and presentations है. अभी डेटा कैप्चरिंग में क्या होगा, क्या टास्क होगा उनके लिए कि उनको वो डेटा मैनेज करना है, लाइक डेटाबेस में है, एक्सेल शीट में है, पीडीएफ में है, टेक्स्ट में है, वीडियो फाइल्स में, ऑडियो फाइल्स में, इन एनी फॉर्मेट. वो जो डेटा सोर्स है उनके पास जो आ रहा है उनको मैनेज करना. एंड सेकेंड थिंग, कन्वर्टिंग द अंडरस्टैंडिंग डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू स्ट्रक्चर्ड डेटा. मीन्स उनके पास जो डेटा आएगा वो किसी फॉर्मेट में नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से वो डेटा आ रहा होता है. तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पुट अप करना, दैट इज अ टास्क ऑफ डेटा कैप्चरिंग डेटा साइंटिस्ट. सेकेंड वन इज एनालिसिस. so you know the basic statistic tools, knowledge of the basic statistics tools, and use the specialized metrics and algorithms. मीन्स कि वो जो पर्सन होगा उसको डेटा एनालिस्ट बोला जाता है, एंड डेटा एनालिस्ट मस्ट हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द स्टैटिस्टिक टूल्स, कि जिनका यूज करके वो उस पर्टिकुलर डेटा को, जिस भी डेटा पे वो वर्क कर रहा है, क्योंकि डेटा बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का अलग अलग डेटा हो सकता है. तो उस पे जो स्टैटिस्टिक परफॉर्म होता है उसका उसके पास मतलब स्टैटिस्टिक्स टूल जो परफॉर्म होता है उसका उसके पास नॉलेज होना चाहिए. एंड विद दैट उसके पास जो अल्गोरिथम्स है या तो मैट्रिक है जिसके थ्रू आप डेटा एनालाइजिंग इजीली कर सकते हो या स्मूथली वो प्रोसेस कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, प्रेजेंटेशन. So it provides a graphical presentation of the pattern and represents the result of the data analysis to the end user. Means कि जो सामने वाला थर्ड पार्टी होगा उसको वो सही से वो डेटा रिप्रेजेंट करना चाहिए. मीन्स ये जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, डेटा कैप्चरिंग, डेटा एनालाइजिंग एंड डेटा प्रेजेंटिंग, वो तीनों अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट टीम अप करके काम करेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन के पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आया होगा वो उसको स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करेगा. फिर जो एनालिस्ट होगा वो उस पर अपने अल्गोरिथम्स परफॉर्म करेगा और उसमें इजीली डेटा नेसेसिटी होगा उतना वो उसको देगा थर्ड पर्सन को. और डेटा प्रेजेंटेटर क्या करेगा, उसमें से जितना एंड यूजर को रिक्वायरमेंट है उसको एक सही पैटर्न में फुलफिल करके वो उसको सेंड करेगा. So these are the core competencies of the data scientist and जिसपे वो वर्क करता है. Then we have the creating the data science pipeline. It is again an important step कि जब आप data science की बात कर रहे हो and उस टाइम पे data science pipeline is an important step. So data science pipeline requires the data scientist to follow particular steps in the preparation, analysis and presentation of the data. जो हमने अभी 3 अलग अलग एरियाज के बारे में बात की कि जिसमें आपका डेटा इन्वॉल्व होता है और उस पर डेटा साइंटिस्ट वर्क करता है. अभी उसको पुट अप करने के लिए डेटा साइंटिस्ट एक पाइपलाइन के थ्रू प्रोसेस करता है, एंड उसके लिए
उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो एनालिसिस है, उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, उस पे अगर वो ये जनरल स्टेप्स परफॉर्म करेगा सो उसका आउटपुट उसको बेटर वे में मिलेगा. So in that first step is the preparing the data. Preparing the data means कि जो डेटा है आपके पास वो अलग अलग सोर्सेज से आया है, माइट बी पॉसिबल कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं आया है. तो हम क्या करेंगे, उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पुट अप करेंगे एंड विद इट द ट्रांसफॉर्मेशन में रिक्वायर द चेंजिंग द डेटा टाइप, order in which the data appears and even the creating or missing the data. मीन्स जब भी हम फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा गैदर हो रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पुट अप कर रहे हैं एंड इन दैट प्रोसेस माइट बी पॉसिबल कि जो डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड है वो आप डेटा टाइप चेंज करोगे या तो उसका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो और उसका क्रिएशन ऑफ द डेटा है उसको भी वहां पे पुट अप कर सकते हो. Second step is performing the data analysis. Performing the data analysis means कि data science provide access to a larger set of the statistical methods and algorithms, right? जैसे अभी हमने previously देखा, तो sometimes single approach may not provide the desired output. We need to use the multiple algorithms to get the result. And to use the trial and errors is a part of the data science art. Means कि जो हमने अभी देखा कि हमने अलग अलग सोर्सेज से डेटा गैदर किया है, अभी उस पे जब हम अल्गोरिथम्स एंड मैथमेटिकल ट्रिक्स अप्लाई करते हैं एंड उसके थ्रू डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उसकी एक कंसिस्टेंसी जनरेट होनी चाहिए और जो जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला थर्ड पार्टी यूजर है उसको यूज करने में काफी इजियर हो जाए, काफी स्मूथर हो जाए एंड उसका जो पर्पस है उसके थ्रू उसकी वर्क ऑफ एफिशिएंसी बढ़ा सके, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ा सके, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा सके. तो जो परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द डेटा है उस पे हम ऐसे एक इज इट नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही एल्गोरिथम से आउटपुट मिल जाएगा. इट माइट बी पॉसिबल कि आपको मल्टीपल एल्गोरिथम के रिक्वायरमेंट्स वहां पे हो सकती है. तो उस पे जो आप ट्रायल एंड एरर्स परफॉर्म करते हो, बेसिकली आप जो अपने एल्गोरिथम्स परफॉर्म करते हो, तो उसमें जो ट्रायल एंड एरर्स का जो पार्ट होता है दैट इज एन यू कैन से कि डेटा साइंस आर्ट. Third step is learning from the data. So as we iterate through the various statistical analysis methods and apply the algorithms to detect the patterns, we begin learning from the data. And data might not tell the story that you originally thought it would. मीन्स आपके पास जो डेटा आ रहा है उस डेटा के थ्रू आप उसमें जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हो, जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, जो पर्टिकुलर पैटर्न सेट कर रहे हो वो डेटा डिटेक्ट करने के लिए, उसके थ्रू भी आप उस डेटा के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो और यू कैन से कि उसके पैटर्न समझ सकते हो ताकि आपका जो डेटा है उसको आप सही वे में यूटिलाइज कर पाओ. And after learning from the data, the result of the algorithm may be different than the initially, and we predict the output. Means जो originally जो हमारे पास डेटा था वो सेम नहीं रहेगा, वो might be possibilities are there कि वो change हो सकता है. उसके बाद है visualizing. So visualization means कि seeing the pattern in the data and then being able to react to those patterns. Or it also means being able to see when data is not a part of the pattern. विजुअलाइजेशन मीन्स आपके पास जो डेटा आया है वो आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन अगर आप क्रिएट कर, जस्ट एन एग्जांपल कि आप ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, सपोज यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन फॉर क्लोथिंग स्टोर, ठीक है, एंड आपके पास जो डेटा आया है उस डेटा में आपके पास क्लोथिंग के रिगार्डिंग तो डेटा आया है, बट उसके साथ साथ सपोज करियाने के रिगार्डिंग डेटा आया है या तो कोई सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई डेटा आया है, बट आपके पास जो एक्स्ट्रा डेटा आया है लाइक करियाने का डेटा है या सोशल मीडिया का, उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन पुट योर विजुअलाइजेशन ओवर देयर एंड जो डेटा जरूरी नहीं है
उनको आप उस पार्ट में से निकाल सकते हो। सो आपकी जो पर्टिकुलर पैटर्न होगी डेटा डिटेक्ट करने की, वहां से वो पोर्शन हट जाएगा एंड विजुअलाइजेशन वहां पे टेक प्लेस करेगा। Then we have the obtaining insights and data products. Means the insights you obtain from the manipulating and analyzing the data helps you to perform the real world task. Like an example, you can use the result of an analysis to make a business decision. जैसे अभी मैंने प्रीवियसली विजुअलाइजेशन स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया कि सपोज आपको क्लोथ स्टोर का एप्लीकेशन बनाना है और उसके लिए आप डेटा गैदर कर रहे हो, तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में आपका जो रियल वर्ल्ड के साथ जो टास्क होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को एनालाइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को मैनिपुलेट करोगे। सो दैट इज द स्टेज ऑफ ऑब्टेनिंग इनसाइड द डेटा प्रोडक्ट। So these are how you can create a data science pipeline। Means अगर आप आपका जो पूरा प्रोसेस है डेटा एनालाइजिंग का, डेटा गैदर करने से लेके डेटा एनालाइजिंग, क्योंकि कोई एप्लीकेशन बनता है या कोई वेबसाइट बनता है तो ऑब्वियसली पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, यूजर्स को क्या चाहिए, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो हिट रहेगा, राइट। तो ऑब्वियसली अभी ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए अगर उसका एक फॉर्मेट होगा, लाइक अ फ्लो चार्ट होगा और ब्लूप्रिंट होगा, यू कैन से कि ये जो डेटा पाइपलाइन स्टेप्स है दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर डेटा, हाउ टू क्रिएट योर एप्लीकेशन। जैसे कि अगर मेरे को कोई घर बनाना है, सो मेरे पास अगर घर का कोई प्लान पहले से रेडी नहीं होगा, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट माय ड्रीम हाउस, राइट। कि मुझे वो कौन सा रूम कहाँ पे रखना है, कौन सा रूम में कितना साइज होना चाहिए, कितने विंडोज आने चाहिए, वो अगर मेरे पास पहले से एक ब्लूप्रिंट होता तो मेरे लिए क्या हो जाता, तो आर्किटेक्चर है उनको समझाना इजी हो जाता कि मेरे को इस थ्रू में इस फ्लो में जाना है, और इस तरीके से आप वो सारा डेटा पाइपलाइन करोगे। सिमिलर चीज जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप उनका यूटिलाइजेशन करने वाले होते हो, उस टाइम पे आपको उसको एक फ्लो में रखना पड़ता है। तो दिस आर द स्टेप्स इन डेटा साइंस पाइपलाइन कि आपको फर्स्ट डेटा प्रिपेयर करना है, सेकंड आप उस पर डेटा एनालिसिस परफॉर्म करोगे, और आपके पास जो डेटा आ रहा है आप उसमें से सीखोगे कि हाउ टू यूज दैट डेटा। फोर्थ, आप विजुअलाइजेशन वहां पे पुटअप करोगे कि हाउ यू कैन change or how you can manipulate your data or how you can put a new pattern into your data. And fifth one, you can obtaining inside the data product. So this is about the whole data science pipeline process. Now why Python? डेटा साइंस देख लिया, डेटा साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं वो देख लिया, एंड आपके डेटा साइंस का कंसेप्ट अगर आप पाइपलाइन में पुटअप करते हो तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा वो हमने अब तक देखा, राइट। अभी इसको पाइथन में हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा, राइट। व्हाई पाइथन? जब पाइथन इन्वेंट हुआ था और पाइथन का विजन जब दिखा गया था, इनिशियली एट दैट टाइम सिंगल पर्सन वाज देयर, गुइडो वैन रोसम, और उन्होंने ये लैंग्वेज स्टार्ट किया था इन दिसंबर 1989, और ये रिप्लेसमेंट ऑफ द एबीसी लैंग्वेज, और यू कैन से कि हमारा जो बेसिक लैंग्वेज है उसके रिप्लेसमेंट में पाइथन मीन्स जो हम सी लैंग्वेज बोलते हैं उसके रिप्लेसमेंट में पाइथन को विजुअलाइज किया गया था और उसको स्टार्ट किया गया था। बट विद द टाइम इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सीड होती गई, एंड it far exceeded the ability to create the applications of all types, and in contrast to ABC, boast for performing styles like performing paradigms, you can say, so be functionally, imperatively, object oriented, सभी जगह पे पाइथन वर्क करता है। फंक्शनल वे में देखो तो फंक्शनली कैसे वर्क करता है, इट treats every statement as a mathematical equation and avoids any form of the state or a mutable data. The main advantage of this approach is having the no side effects to consider. Third thing, this coding style leans itself better than the other to parallel processing because there is no state to consider. And fourth, many developers prefer this coding style for
recursion and for lambda calculus. तो अगर आप C में C++ में या तो बेसिक OOP कंसेप्ट में देखोगे तो वहां पे it might be a little bit difficult to do the programming on functional things like जो रिकर्जन स्टाइल है, जो लैम्ब्डा कैलकुलस स्टाइल है, उनकी कोडिंग अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ करने जाते हो तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कंपेयर टू द पाइथन. सो पाइथन में वो काफी इजी हो जाता है. सेकंड थिंग इज imperative, means it performs the computation as a direct change to the program stack, and this style is especially useful when manipulating the data structures and procedures elegant but simple code. हमने प्रीवियस चैप्टर में ही देखा कि पाइथन की कोडिंग कितनी इजी है और उसमें आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है जितना आप ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लगाते हो. ओके. Third thing, object oriented. So it relies on the data fields that are treated as an object and manipulated only through prescribed methods. Python doesn't fully support this coding from form because it can't implement features such as data hiding. And this is the useful coding style for the complex application because it supports the encapsulation and polymorphism. Obviously, encapsulation and polymorphism is also supported in other languages. जहाँ पे UPS concept है वहाँ पे हर जगह पे ये supported है. But with Python, it is quite easier to handle this type of the complex applications जो specially encapsulation and polymorphism के concept use करती है. Last one is procedural language. So treat the task as a step-by-step iteration where common tasks are placed in the function that are called as needed. So we can implement on different programming styles like functional, imperative, object-oriented, procedural with Python in an easier way. So how Python play the role in data science? So there are so many things which are supported by the data science. So Python has a unique attribute and it is easy to use when it comes to a quantitative and analytical computing. Basically जो difficult task होते हैं, mathematical task होते हैं, उनको जब perform करना होता है at that time पे Python is quite easier one with data science. Data science Python is widely used and is favorite tool along with the flexible and open source language. आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, प्लस इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत अच्छी है. सो यू कैन यूज इट एंड यू कैन से कि ये वर्ल्ड वाइड काफी यूज होता है वाइडली. It's a massive libraries are used for the data manipulation and very easy to learn even for beginner data analysis. Beginner person होता है उनके लिए भी डेटा साइंस के साथ पाइथन यूज करना काफी इजी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जिनको आपको सिर्फ इंपोर्ट करवाना होता है या यू कैन से कि उनको डायरेक्टली यूज करना होता है. आपको सिर्फ कोडिंग करनी होती है, ना ही कि वो लाइब्रेरीज को क्रिएट करना पड़ता है और उसको वहां पे ऐड करना पड़ता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इट आल्सो इजीली integrates with any existing infrastructure which can be used to solve the most complex problems. तो वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है उनको सपोर्ट करवाने के लिए इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाइथन का वो काफी इजी है बिकॉज जैसे हमने अभी प्रीवियसली बात किया डेटा को हैंडल करना इज अ क्वाइट ह्यूज टास्क, राइट. तो विद द पाइथन इट इज क्वाइट स्मूदर वन कि अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर उसको इंटीग्रेट करते हो तो वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी इजीली वर्क करता है एंड बहुत सपोर्टिव है. Then Python is preferred over the data science tools because it following the features like it is powerful and easy to use, it is open source, choices of libraries are there, flexibility are there, visualization and graphics are there, and it is well supported. So these are the major advantages of Python, you can say, the data science over the data science tool, other the data science tool. So जिसकी वजह से हमारा जो भी
टास्क होगा, जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, एंड वहाँ पे आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी आ रहा है, फिर भी विद पाइथन पाइथन आप उसकी इजीली कोडिंग कर सकते हो, यूज करने में इजी है। वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स कि जो हमने बेसिक स्टेटमेंट के एग्जांपल्स है, या तो while do while का एग्जाम while लूप का एग्जांपल था, for लूप का एग्जांपल था। सेम चीज अगर आप ट्रेडिशनली में देखो कि सी में अगर मुझे उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, वो थोड़ी सी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स थी, राइट। और वहाँ पे मेरे को लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करवाने पड़ते थे, जबकि पाइथन में मेरे को कोई लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं करवाने पड़े। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, विजुअलाइजेशन एंड जो ग्राफिक्स अवेलेबल है वो भी बहुत इजियर वन है और बहुत सपोर्टिव वन है। So that is all about today's lecture. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. In upcoming session, हम देखेंगे कि speed of execution कैसे होता है, एंड जो हमने पाइथन इकोसिस्टम्स अभी देखे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पाइथन इकोसिस्टम्स आर देयर, कि लाइब्रेरीज वहाँ पे अवेलेबल है, numpy है, pandas है, scipy है। तो उन सभी के बारे में देखेंगे कि वो क्या है और वो कैसे यूज कर सकते हैं। If you guys have any doubt, you can put your question in below comment box. Thank you so much, everyone.